हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ट्यून विद नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड अबाउट वेरियस पंक्चुएशन। कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन भी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनके रूल्स बच्चों को पता होने चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को पंक्चुएशंस भी पता होने चाहिए, बिकॉज़ जब बच्चे रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग के टाइम पे उनको वेरियस पंक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको रीड करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को समझना भी पड़ता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I would like to request you to please subscribe my channel Tune with Knowledge so that you will get the latest updates of my videos. Now these are the rules of capitalization. Rule 1 says a sentence always begins with a capital letter. Whenever we start a sentence, it always begins with a capital letter. Here I will show you examples also. The example is I am Ritu, I am an Indian. So here the sentence I is capital, and when we put a full stop after that, the first letter is also capital. Now rule 2, the pronoun I is a capital letter in a sentence. Whenever we write I in a sentence, whenever we use pronoun I in a sentence, it is always written in capital letter. Example, Reena and I are friends. Here I is coming in the middle of the sentence, but it should be written in capital letter. Rule 3 says always capitalize proper nouns, name of people, places and things. Whenever we see a proper noun, then we have to capitalize that particular person name, place and thing name if it is proper noun. We can see the example here. Examples are Anu, Delhi, Hawa Mahal. Rule 4, always capitalize a person's title when it comes before his or her name. Now let's see this with the help of example. Now here I have taken examples like Mr. Arora. So Mr. is the title, okay, so Mr. M will be capital, and Arora is the name of the person, is the surname, so it should also be written in capital. Mrs. Sharma. अब Mrs. Sharma भी एक title है, it's title given to some married lady. So Mrs. M will be capital and Sharma is again the surname, so S will be capital. Dr. Dev, so Dr. D will be capital, and Dev is the name of a person, so it will also be capital. D will also be capital. Rule 5, capitalize the first word of quoted sentences. Now again we'll see with the help of the example. Now here if you see, he said, inverted comma start, how beautiful winter is. So this is an exclamation mark, these are the quotation marks, okay. So this we will study after we complete the rules of capitalization. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी various punctuation marks. लेकिन जब भी हम quotation start करते हैं या किसी के भी quoted word start करते हैं, तो जो first letter होगा वो भी capital होगा. As you can see here, inverted comma start, inverted comma stop, so this H will be capital. Rule 6 says always capitalize days of the week and months. So here we can see example, Monday, Wednesday, May, August. So Monday and Wednesday, day of the week, and May and August, months of the year. So the first letter will be capital. Now next, always capitalize name of buildings, monuments. So here name of the building is Empire State Building and monument Taj Mahal, Hawa Mahal, okay. So the first letter will be capital. Next, rule 8, always capitalize name of street,
cities, states, countries. Now we can see here the examples. लखनऊ जो है वो सिटी का नेम है, सो लखनऊ एल विल बी कैपिटल. उत्तर प्रदेश स्टेट का नेम है, इट विल बी कैपिटल. एंड इंडिया जो है वो कंट्री का नेम है, सो इट विल ऑल्सो बी रिटन इन कैपिटल लेटर. रूल 9, ऑलवेज कैपिटलाइज टाइटल ऑफ स्टोरीज, बुक्स, मूवीज़, टीवी शोज़ एक्सेट्रा. किसी भी स्टोरी का नेम, बुक्स का नेम, मूवी या टीवी शो का नेम जो है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. एग्जाम्पल वी कैन सी हियर, अ गुड फ्रेंड इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. हैरी पॉटर is book also or movie also, so Harry H and Potter P will be capital. Shesha is the name of the movie, so it will be capital like this. Rule 10, always capitalize name of newspapers, trains, subjects, languages, festivals. हमेशा न्यूज़पेपर के नेम्स को, ट्रेन्स के नेम को, सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स के नेम को भी कैपिटलाइज करेंगे. Examples, The Times of India is the name of the newspaper, Shatabdi Express is the name of the train. Okay, subject is English. Okay, languages, French, German, festival, Diwali, Eid, Holi, ये सब कैपिटल में लिखे जाएंगे. Now after rules of capitalization we come to punctuation. हम punctuation पे आते हैं. पंचुएशंस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इनिशियल स्टेज पे ही उन्हें पता चल जाना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस पंचुएशन और उनको कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाता है. पंचुएशन का करेक्ट यूज़ अगर बच्चे को आ जाएगा तो उसको रीडिंग करने में भी आसानी होगी. साथ के साथ अगर उनको पैराग्राफ डिक्टेशन बोला जाए या उनको डिक्टेट करके आंसर्स जैसे स्कूल में टीचर्स बोलेंगे तो वो आसानी से और जल्दी उसको समझकर लिख पाएंगे. तो ये सारे पंचुएशंस जो हैं वो मेन हैं, जैसे कि कॉमा, एज यू कैन सी दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉमा. फिर हाइफन है, फिर फुल स्टॉप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पंचुएशन होता है. देन क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रॉफी, स्लैश और ऑब्लिक, इसका सिंबल ऐसे है. एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन्स, inverted comma close. Now we will study these punctuation one by one. First one is comma. It is a small pause in a sentence. Comma एक small pause होता है एक किसी भी sentence में. It is used to separate the item in a list. जब हमें list होती है, हमारे पास एक ही ग्रुप की लिस्ट होती है, जैसे हम वेजिटेबल्स के नेम लिख रहे हैं या मंथ्स ऑफ द ईयर के नेम्स लिख रहे हैं, तो हमको कॉमा से हम उनको सेपरेट ईजिली कर सकते हैं. एज यू कैन सी हेयर वन एग्जांपल इज़ गिवन, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल आर द मंथ्स ऑफ द ईयर. ये एक ही ग्रुप के हैं, मतलब ये सारे मंथ्स हैं, तो इनको हमने सेपरेट किससे किया है, कॉमा से. ओके, नाउ नेक्स्ट पंचुएशन इज़ हाइफन. हाइफन जॉइन वर्ड्स टुगेदर. कोई भी टू वर्ड्स को जॉइन करता है हाइफन. जैसे यू कैन सी द एग्जांपल, आई लव टू ईट आइस क्रीम. आइस और क्रीम टू वर्ड्स हैं, उनको हाइफन से जॉइन किया हुआ है, आइस क्रीम. फुल स्टॉप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पंचुएशन होता है. इट मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस. जब भी हम बच्चों को कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन के बारे में बताएंगे तो हम हमेशा उनको यही बताते हैं, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पंचुएशन है. फुल स्टॉप लगने के बाद ही एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है. इट मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, आई लिव इन आगरा, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, लाइक दिस. एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से ही पता चलता है. नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन मार्क. इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर हम लगा देते हैं, या कभी भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो, मतलब ये है कि ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एंड हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन. इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा. अपॉस्ट्रॉफी, इट शोज़ ओनरशिप और बिलोंगिंग. अपॉस्ट्रॉफी जो है वो ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग शो करता है.
पोजेशन शो करता है. इट ऑल्सो शोज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वर्ड्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द चिल्ड्रंस रूम. अब इधर द चिल्ड्रन रूम से हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये बच्चों का कमरा है. बच्चे इसके ओनर हैं, बच्चों को बिलोंग करता है ये रूम, या फिर ये बच्चों का पोजेशन है इस रूम में. सो द चिल्ड्रंस रूम जो है वो ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग शो करता है. नेक्स्ट जो है अपॉस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स भी शो करता है. एज यू कैन सी हियर ही विल. अब अगर हमको इनको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ही एंड ऊपर ऐसे साइन करके अपॉस्ट्रोफी का और डबल एल, हील. ओके, सो इसका मतलब होगा ही विल. शी इज़, शीज़. इट इज़, इट्स. ओके, लाइक दिस. स्लैश और ऑब्लिक. दिस सिंबल इज़ यूज टू शो ऑल्टरनेटिव्स. ये जो सिंबल है वो ऑल्टरनेटिव्स शो करता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी लंच एंड डिनर या फिर और डिनर. ओके, सो हेयर आई हैव यूज स्लैश. नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज टू राइट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन लिखने के लिए भी स्लैश या फिर ऑब्लिक का यूज़ होता है. 2:5, 4:7 लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है. इट एम्फसाइजेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. जब हम कोई भी पर्सन स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन दिखाता है अपना तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ही हमें पता चलता है. इट मार्क्स द एंड ऑफ अ ड्रामेटिक सेंटेंस, स्टेटमेंट और सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर, ओ व्हाट अ ब्यूटिफुल रोज़. हेयर एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ used because ये एक strong feeling या emotion दिखा रहा है. Hooray! This is the strong feeling. We won the match. हम मैच जीत गए. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसी टाइप की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे. लास्ट पंक्चुएशंस जो हैं वो मैंने कंबाइन कर दिया है. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बिगिन, इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप, एंड. दीज इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू मार्क द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ अ कोट. जब भी हम कोई भी कोट को बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या उसको एंड कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखते हैं. इट इज़ यूज्ड टू शो व्हाट इज़ सेड बाय समवन. ये वो शो करने के लिए यूज़ होते हैं कि किसी पर्सन ने क्या बोला है, किसी ने क्या स्टेटमेंट दी है. जैसे कि एग्जांपल, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला. सो आफ्टर द डॉक्टर सेड वी विल पुट कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट. टेक दिस मेडिसिन. ये डॉक्टर की स्टेटमेंट थी कि टेक दिस मेडिसिन एंड इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. सो जब भी हम किसी के बारे में बताएंगे कि उस पर्सन ने क्या बोला है तो हम इन्वर्टेड कॉमास की हेल्प से एग्जैक्टली उसके वर्ड टू वर्ड इन्वर्टेड कॉमा की हेल्प से लिखते हैं. ओके, या कोटेशन भी लिखते हैं. किसी पर्सन के खुद के वर्ड्स हैं, किसी ऑथर के, किसी राइटर ने लिखा है तो हम उसके जो भी कोट हैं उसके जो वर्ड्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास पे लिखते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पंक्चुएशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ट्यून विद नॉलेज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. और आपको एक बार और रिमाइंड करा दूँ, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश ग्रामर की. तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारे टॉपिक्स 1 by 1 देख पाएँ, 1 by 1 उनको कवर कर पाएँ, समझ पाएँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. After explaining children about punctuation and capitalization, we will introduce them with the worksheets. आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ वर्कशीट्स फ्रेम की हैं ताकि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन का. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस पंक्चुएशंस. यहाँ पे मैंने कुछ पंक्चुएशन ड्रॉ किए हैं और इस बॉक्स के अंदर बच्चों को इनको आइडेंटिफाई करके लिखना है. जैसे कि दिस इज़ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, कॉमा, स्लैश और ऑब्लिक. Next question, rewrite the sentences using capital letter wherever necessary. Now as you can see ये एक सेंटेंस है. अब इधर हमें बच्चों को ये कहना है कि उनको ये सेंटेंस देखना है और इसके बाद जहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पर उनको कैपिटल लेटर लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम डूइंग माई वर्क.
और मैंने रूल में जैसे कि बताया था कि प्रोनाउन आई हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं, प्लस यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, तो वो भी कैपिटल लेटर से ही बिगिन होगा. सो द आंसर इज आई विल बी कैपिटल. आई एम डूइंग माई work. This is the correct sentence and we will put full stop. Now next question, where are you going? Now here this is a question, इसलिए यहाँ पे question mark है, लेकिन question भी जब start होता है तो जो first letter है वो capital होगा. So W will be capital. Where are you going? Question mark. Part 3, चारमीनार इज़ इन हैदराबाद. एज़ यू नो दैट चारमीनार एक जगह का नाम है, हैदराबाद भी एक जगह का नाम है, तो दोनों जो हैं वो कैपिटल में आएंगे. CHARMINAR. चारमीनार इज़ इन हैदराबाद. इट विल ऑल्सो कम इन कैपिटल लेटर एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप. Now the next exercise after this is punctuate the following sentences. इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ करें जहाँ पे भी रिक्वायर्ड थे. अब इस सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स तो दिए हुए हैं लेकिन हमें पंचुएशन यूज़ करना है. राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. सो हियर राम एंड श्याम आर ब्रदर्स और इसके बाद फुल स्टॉप. नंबर 2, व्हाट इज़ योर नेम. W कैपिटल है, इधर राम का R कैपिटल था, श्याम का S कैपिटल था. ये दोनों ठीक थे लेकिन फुल स्टॉप आना था. व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज़ द करेक्ट क्वेश्चन बट एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, Tina, Pari and Riya are friends. Now Tina, Pari and Riya तो कैपिटल लेटर में दिए हैं बट अब इधर पंचुएशन यूज़ करना है. सो टीना और परी के बीच में कॉमा आएगा. एंड रिया आर फ्रेंड्स. आफ्टर फ्रेंड्स फुल स्टॉप आएगा. और उसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो मैंने दोनों क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को कंबाइन करके लिया है. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन. नाउ हियर दिस इज़ अ क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू. ओके, सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन देन द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. हाउ ओल्ड आर यू और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तब भी कैपिटल लेटर से होगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. Now the next one is my birthday is in August. So my M will be capital. My birthday is in August. A will be capital as it is the name of the month. Okay, so at the end we will put full stop. Now here 3 names are given. Riya, Diya and Pia are playing. So Riya R will be capital. Diya D will be capital. And Pia P will be capital. Are playing. ओके, ये तो हमने कैपिटल कर दिया रिया, दिया और पिया क्योंकि ये नेम है पर्सन के. बट रिया और दिया के बाद कॉमा आएगा और ये जैसे ही हम सेंटेंस एंड करेंगे एट द एंड वी विल पुट फुल स्टॉप. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो, आपके बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कवर कर रही हूँ. मैंने लास्ट वीडियो नाउन्स के ऊपर बनाई है, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस का एडवांटेज ले सकें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लीव अ कमेंट, लाइक, शेयर. थैंक यू. बाय बाय.